Let us start with Unit 3 Other Essential Elements of a Contract of Business Laws, Chapter 2, that is Indian Contract Act 1872. So, here's an overview of the unit. Essentials element of a valid contract, that is capacity to contract, which is MSD, majority, sound mind, and not disqualified by law. Then free consent, it should not be caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake. Lawful consideration and object according to section 23 and not expressly declared to be void. So it has been already discussed that an agreement results from a proposal by one party and its acceptance by the other. We have already discussed offer, acceptance, and consideration in detail. We shall now discuss in detail the elements which constitute a valid and enforceable contract in law. So Section 10 states that all agreements or contracts, if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be void by Section 10. Okay, now we have the given capacity to contract. Capacity refers to the competence of the parties to make a contract. It is one of the essential elements of a firm, a valid contract. Section 11, who is competent to contract? Who has a person who has attained the age of majority, that is 18 plus, and not even a single day late, okay, is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. So once again, section 11, here it is given. Who is competent to contract? Every person is competent to contract who has attained the age of majority and is of who has attained the age of majority, is of sound mind, and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. So MSD. Okay, age of majority in India. The age of majority is regulated by the Indian Majority Act 1875. Every person domiciled in India shall attain the age of majority on the completion of 18 years of age and not before. The age of majority being 18 years, a person less than that, even by a day, would be minor for the purpose of contracting. So I hope that it's clear. Then law relating to minors agreement or position of minor. So basically, now there are some points which are laws relating to minor. Now before going to that, I want you to understand the concept of person disqualified from contracting by any law to which he is subject. Now in that we have been given some of the basic things. Firstly is the minor, second is the insolvent, drunkard, or like permanently unsound, or like insolvent or lunatic, like that. So basically, person of sound mind, section 12, it states that person of unsound mind at the time of entering the contract, usually of unsound mind, occasionally of sound mind, can make a contract when he is of sound mind, and usually of sound mind, occasionally of unsound mind, may not make a contract when he is of unsound mind. Now status at the time of making the contract, he should be understanding the contract and has to be given a rational judgment, what is right, what is wrong, what is positive, what is negative. So permanently sound, it's a valid contract. Permanently unsound, it's invalid contract or void. Okay, temporary sound or unsound, when it is sound it's valid, unsound it is void. Contract by disqualified person, void contract. It is very important that any person who is not competent to contract, whether he is a minor, whether he is of unsound mind, whether he is not disqualified from contracting by any law to which he is subject, that is a void contract. Besides minors and persons of unsound mind, there are also other persons who are disqualified from contracting partially or wholly. The contracts by such agreements persons are void. So incompetency to contract may arise from political status, corporate status, or legal status. The following persons fall in the category: foreign sovereigns and ambassadors, alien enemy, corporation, convicts, insolvents, etc. Now laws relating to minor. Now here are some like given 14 laws. So VRBP, NGSI, APJ, SST. This is the mnemonic. Okay. So void ab initio, V. Void ab initio, example, you have been given case Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh. ठीक है, नो ratification of contract entered when minor after attaining. अच्छा, इसका मतलब है ratification, कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, इवन इफ वो जो माइनर था कॉन्ट्रैक्ट के समय में माइनर था लेकिन बाद में मेजर हो गया, कोई ratification अवेलेबल नहीं है. बेनिफिशियरी येस, जो कि है जो हमारा माइनर है वो बेनिफिट के लिए अपॉइंट हो सकता है. आप सेक्शन 30 याद करो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का. माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी फॉल्सली रिप्रेजेंट स्टेपल नॉट एप्लीकेबल. अब देखो, आप माइनर जो है वो जानबूझ करके भी अगर एंटर कर जाता है, बाद में अगर बोलेगा कि अरे मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो 18 प्लस नहीं हूँ, मैं 18 माइनस हूँ, नेगेटिव, मैं माइनर हूँ, मैंने गलती से हुआ था, तो वो प्लीड कर सकता है, ही इज़ एप्लीकेबल फॉर दैट. लेकिन
मेजर लोग नहीं कर सकते, दैट इज़ व्हाट इट सेज। तो पी, तो ये आ गया पी यहाँ पे, बी आ गया यहाँ पे, आर आ गया यहाँ पे। ओके, नेसेसरी सप्लाइड कैन बी रिकवर्ड ओनली फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी और इस्टेट, नॉट पर्सनली लाइबल। यानी कि जो भी आपका माइनर को आप नेसेसरी प्रोवाइड करते हो, नेसेसरी यानी कि आपका फ्यूनरल एक्सपेंस, एजुकेशन है ना, फंड, एजुकेशन फंड, हेल्थ वगैरह, एजुकेशन वगैरह वगैरह आप दे रहे हो, दैट यू कैन बी रिकवर्ड ओनली फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी और इस्टेट। सेक्शन 13 और सेक्शन 68 बताता है ये। गार्जियन कैन मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हाँ माइनर का जो गार्जियन है वो कर सकता है। और आपने प्रिंसिपल और एजेंट वाला, एजेंसी वाला चैप्टर, आई थिंक यूनिट 9 है वो, अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये चीज़ है। नो क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नाउ minor cannot be asked for doing a specific performance if anything is caused by it. Now, no insolvency. Minor can never be insolvent. Minor can be an agent but not liable to principal. Yes, minor can be agent and not liable to principal. In that chapter, then that unit, you have seen that principal needs to be of major. He needs to be major, but agent can be minor or major, whatever he is. Okay. और ये इंसॉल्वेंट, ये बेसिकली एजेंट जो है वो बेसिकली नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, यानी कि ड्रंकार्ड, ल्यूनेटिक वगैरह भी हो सकता है। लेट्स सी, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्जियन अनलेस एजेंट। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। इसमें क्या है, पार्टनर बनाया जाता है माइनर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। तो माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्जियन। नॉट जॉइंट प्रॉमिस बाय बोथ, अडल्ट विल बी लाइबल एंड नॉट द माइनर। जॉइंट प्रॉमिस में अडल्ट लाइबल होगा, नॉट माइनर। श्योरिटी टू बी टू अ माइनर इज लाइबल इफ द माइनर डिफॉल्ट्स। अगर किसी का श्योरिटी, आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी वाला एक चीज़ होता है जो कि यूनिट आई थिंक 8 में होता है, बेलमेंट वगैरह वही सब केस में। तो श्योरिटी अगर माइनर का है तो वो लाइबल होगा, माइनर अगर डिफॉल्ट करता है तो। माइनर कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर बट एज थ्रू लीगल गार्जियन, यस। यानी कि माइनर शेयर होल्डर नहीं हो सकता, लेकिन अगर लीगल गार्जियन के द्वारा है तो यस ही कैन बी। ट्रांसफर, ट्रांसमिशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, यानी कि उसको फुल्ली पेड अप शेयर्स ही मिलेंगे। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट्स यानी कि मैटर ऑफ यूटिलिटी, यूजिंग them as like basically civil wrongs, torts matlab. Okay, so I hope the law relating to minor is complete. And over here you can see Mohri Bibi Dharmudas Ghosh, Mr. D, a minor, mortgaged his house for 20,000 rupees to lender, but the mortgage money lender has paid him rupees 8,000. Subsequently, the minor has filed a suit for cancellation of the contract, held the contract is void as Mr. D is minor and therefore is not liable to pay anything to lender. And all these things I have told you. Now, to render minors estate liable for necessaries, two conditions must be satisfied. The contract must be for the goods reasonably necessary for his support in the station of his life. The minor must not और हैव ऑलरेडी ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज नेसेसरीज, यानी कि नेसेसरी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग 2 कंडीशन चेक करते हैं, जो कंडीशन को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये रीजनेबली नेसेसरी होना चाहिए ताकि आपका जो लाइफ है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सके, वही एजुकेशन, हेल्थ वगैरह और फ्यूनरल एक्सपेंसेस वगैरह। द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज नेसेसरीज। नेसेसरीज मीन्स दोज थिंग्स दैट आर एसेंशियली नीडेड बाय माइनर। एक माइनर को सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो होती हैं नेसेसरीज। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन हाउ फार इन्फोर्सिबल, ये तो पता है। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोल सकते। नो इंसॉल्वेंसी, पार्टनरशिप, माइनर कैन बी एजेंट, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसका एग्जाम्पल, रिचा अ माइनर एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय बाइंग अ स्कूटी फ्रॉम द डीलर एंड मेंशन दैट हर पेरेंट्स विल बी लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ स्कूटी। द डीलर सेंट अ लेटर टू हर पेरेंट्स फॉर मनी। द पेरेंट्स विल नॉट बी लाइबल फॉर सच पेमेंट एज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड बाय अ माइनर इन देयर एब्सेंस एंड आउट ऑफ देयर नॉलेज। यहाँ पे गलती जो है वो शॉप ओनर का है कि वो एक माइनर को वो बेचे, तो यहाँ पे पेरेंट्स को लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। ओके, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाय माइनर एंड एडल्ट है, श्योरिटी गारंटी, गारंटर फॉर अ माइनर है, माइनर एज शेयर होल्डर है, लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स है, और पर्सन ऑफ साउंड माइंड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम when he makes it is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interest. A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind. So, a patient in lunatic asylum who at intervals is of sound mind and may contract during that. So, I hope that it's clear. Possession of unsound mind person making a contract who is not of sound mind is void. Contract by disqualified persons besides minors like these are disqualified from contracting, like all I said, foreign sovereigns, ambassadors, alien enemy corporations, convicts and insolvent, etc. So these are actually disqualified from contracting by any law to which he is subject. Now here is given some free consent. Okay, consent is section 13.
टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी कंसेंसस एड इडम, यानी कि अग्रिंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ओके, जब फ्री कंसेंट का बात आता है तो सेक्शन 14 हो जाता है, उसमें कफ एमएम यानी कि कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद ये सभी सेक्शंस दिए हुए हैं, कोर्जन का 15 है, अंडू इन्फ्लुएंस का 16 है, फ्रॉड का 17 है, मिसरिप्रेजेंटेशन का 18 है, मिस्टेक का 20, 21, 22। मिस्टेक हमारे दो तरीके के होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। अब इन सभी केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज वॉइडेबल, बट मिस्टेक के केसेस में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। वाई? क्योंकि मिस्टेक हमारा दो तरीके का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे हमेशा वॉइड नहीं होगा, एक वैलिड भी होगा। अगर लॉ का बात किया जाए अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी कि अगर मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्टर का, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ वॉइड हो जाएगा। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यहाँ पे हम लोग आते हैं यूनिलैटरल मिस्टेक और बायलैटरल मिस्टेक। आई होप दैट इट इज रिटन ओवर हियर। ओके, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर मिस्टेक ना दो तरीके का होता है, यहाँ पर वो डिवीजन नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट दिया हुआ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमेशा वॉइड होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ का बात किया जाए, मिस्टेक ऑफ लॉ दो तरीके का होता है, एक होता है इंडियन लॉ, एक होता है फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ के केस में हम लोग बोलते हैं कि आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते इंडियन लॉ को, बिकॉज इट इज़ अज्यूम्ड कि आपको इंडियन लॉ के बारे में सब कुछ पता हुआ है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन लॉ के केस में आप प्लीड कर सकते हो खुद को कि आपको फॉरेन लॉ के बारे में नहीं पता हुआ, यानी कि आप इट इज़ अज्यूम्ड कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो आपको इंडियन लॉ के बारे में पता होना चाहिए। फॉरेन लॉ वेयरएज ये वॉइड हो सकता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ये हो गया। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो कंसेंट क्या होता है, ये वाला मैंने डेफिनेशन बता दिया। तो कंसेंसस एड इडम यानी कि सेम थिंग इन द सेम सेंस, नो फंडामेंटल एरर्स शुड बी देयर, यानी कि यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्सन या पार्टी इन्वॉल्व, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन सच केस रियल कंसेंट इज मिसिंग और एब्सेंट। यानी कि अगर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, ओके, पर्सन और पार्टी इन्वॉल्व में कोई प्रॉब्लम है, फंडामेंटल एरर है, या फिर सब्जेक्ट मैटर, यानी कि ना PSM, यानी कि नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, पर्सन और पार्टी इन्वॉल्व, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि नो फंडामेंटल एरर शुड बी देयर, तो ये कंसेंट मिसिंग या एब्सेंट है। ओके, सो कोर्जन, व्हाट इज कोर्जन? First of all, let us see that free consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake, और ये as per section, ये you can write, okay, in section 15 as defined like that. So when consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation or undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused, यानी कि अग्रीव्ड पार्टी के केस में वो voidable होता है। when the consent is vitiated by mistake, the contract becomes void। मिस्टेक के केस में ही सिर्फ वो void रहता है, यानी कि coercion, undue influence, fraud, misrepresentation में void रहता है, बाकी सब मिस्टेक के केस में that is void, and that too मिस्टेक ऑफ फैक्ट के केस में, बिकॉज लॉ के केस में, इंडियन लॉ में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एलिमेंट्स vitiating free consent, now let us explain these elements one by one. Coercion, what is coercion? Section 15, coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever, with the intention of causing any person to enter into an agreement. And in simple terms it is written over here: committing or threatening to do any act forbidden by law or Indian Penal Code, or unlawfully detaining other person's property to compel other person to enter into an agreement. Effect, what is the effect? Section 19 of coercion. A, that is, it is voidable at the option of the aggrieved party. And why? Because threatening to commit suicide is also considered as coercion, it's just a point. And B, person to whom money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it, यानी कि coercion के अंदर में, यानी कि आपको थ्रेटन करके पैसा वगैरह लिया गया है, तो आप सेक्शन अंडर सेक्शन 72 के आप सारा का सारा चीज़ वो वापस कर सकते हैं। अंडर इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, so where the parties relation subsist in such a way that one party is in a position to dominate the will of the other party and uses such position to gain some undue advantage, यानी कि आप गेन कर रहे हो undue advantage को उस पोजिशन को यूज़ करके। तो पार्टी का रिलेशन इस तरह का है कि एक पार्टी दूसरे के पार्टी को डोमिनेट, दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट कर रहा है, जैसे कि लॉयर और उसका क्लाइंट, ओके, डॉक्टर और उसका पेशेंट, यानी कि एक बेसिकली आप समझिए स्पिरिचुअल गुरु और उसका जो वो है एजेंट। तो बेसिकली उसमें क्या कहा जा रहा है कि आपका रिलेशनशिप उस तरह से एग्जिस्ट करता है। इसमें एसेंशियल्स हैं आर डुब, यानी कि रिलेशनशिप होना चाहिए, डोमिनेटिंग पोजीशन होना चाहिए, मोटिव ऑफ अनड्यू एडवांटेज होना चाहिए, और बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑन अग्रीव्ड पार्टी, यानी कि आप अग्रीव्ड पार्टी के अंदर बर्डन आना चाहिए कि आप प्रूफ दें कि आपका जो है वो आप पर
अनड्यू इन्फ्लुएंस आया गया है। डोमिनेट करता है कैसे? RMFU यानी कि रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी, ओके। मेंटल डिस्ट्रेस, फिड्यूशरी रिलेशनशिप होना चाहिए। फिड्यूशरी रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल फादर और सन का रिलेशनशिप, ओके। अनकॉन्शनेबल बार्गेन होना चाहिए, यानी कि अनरीजनेबल बार्गेन होना चाहिए। उसके बाद अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस जब द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन टू पार्टीज आर सच दैट one of the parties in the position to dominate the will of the other party and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other, okay. And there over here essential ingredients under this provision are relation between the parties, that is close relationship should be there, position to dominate the will होना चाहिए। अब पोजिशन टू डोमिनेट द विल आपका चार तरीके से होगा। वन पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर ड्यू टू रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, मेंटल डिस्ट्रेस, ओके, अनकॉन्शनेबल बार्गेन। अब रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी में डॉक्टर पेशेंट हो गया, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में फादर सन हो गया, मेंटल डिस्ट्रेस में इलनेस ऑफ एन ओल्ड एज हो गया, अनकॉन्शनेबल बार्गेन में मनी लेंडर का हो गया। मनी लेंडर जो होता है अनकॉन्शनेबल अनरीजनेबल बार्गेन करता है। जैसे कि आप पहले देखते हैं कि उसमें आपका जो है मनी लेंडर जो है क्रेडिटर बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं आपसे, चार्ज करते हैं, और जब वापस करते हैं तो आपसे और ज़्यादा इंटरेस्ट पे मांगते हैं, लाइक इट इज़ अनरीजनेबल। ऑब्जेक्ट टू टेक अनड्यू एडवांटेज, आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि आप अनड्यू एडवांटेज लो स्पिरिचुअल गुरु का केस में। बर्डन ऑफ प्रूफ होना चाहिए, द इन्फ्लुएंस्ड पार्टी मस्ट प्रूव द अदर पार्टी हैड पावर टू डोमिनेट, द अदर पार्टी यूज्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस, द ट्रांजैक्शन इज अनफेयर एंड अनकॉन्शनेबल। PUU पावर, अनड्यू इन्फ्लुएंस और अनफेयर होना चाहिए, ओके। इफेक्ट क्या है 19A के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस का? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड ईदर एब्सोल्युटली और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर अपॉन सच टर्म एंड कंडीशंस एज टू कोर्ट मे सीम जस्ट, ओके। नाउ हियर्स अ difference between coercion and undue influence. Before moving that, we can see over here that effects of coercion we have two. So all these two I have told you. Threat to commit suicide is also coercion. Undue influence 16. Then RDU, that is relation between parties, position to dominate the will. Then over here RFMU, real and apparent authority, fiduciary relationship, mental distress, unconscionable bargain. Okay, the object must be to take undue advantage and burden of proof. Three things, that is position to dominate the will, and then position to obtain his consent, and then transaction is unfair and unconscionable. Over here we have three things, that is power, then undue influence we have, okay. So that was this PUU, okay. Then effect of undue influence I told you 19A, that is here 19A. Two effects are there, I told you. Fraud we have been given. Now apart from that, if it is given coercion and undue influence, okay, it is given. So okay, over here you can see that is NCR EEP, that is nature of action, coercion, undue influence. First of all, you will be defining the meaning of it, because section over here section 15 it is coercion, undue influence is 16. So you can define it according to section 15 of the Indian Contract Act 1872, and according to like that, okay, you can define it. It involves the physical force or threat if the aggrieved party is compelled to make the contract against its will, and it involves moral और mental pressure, जिसमें आपका RDUB और RFMU वाला केसेस आता है, अपरेंट अथॉरिटी वाला का। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन, तो कोर्जन और अंडर इन्फ्लुएंस में इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड और डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी अनलॉफुली। Undue influence, no such illegal act is committed or threat is given. A relationship between party, it is not necessary that there is must be a sort of relationship between parties, ठीक है, some sort of near relationship must be there, okay. Exercised by whom? Coercion need not proceed from the promisor nor it be directed against the promisor. It can be used even by stranger to a contract. Stranger to contract के द्वारा भी आपका ये हो सकता है, but undue influence is always exercised between parties to contract, यानी कि near relationship वाले, fiduciary relationship हो गया, mental distress हो गया, वो सब वाले। Enforceability, the contract is voidable at the option of the party whose consent was so been obtained by the coercion. Where the consent is influenced by the undue influence, the contract is either voidable or the court may set it aside or enforce it in the modified form. Possession of benefits received. In case of coercion, where the contract is rescinded by the aggrieved party, as per section 64, any benefit received has to be restored back to the other party. The court has the discretion or to direct aggrieved party to return the benefit in whole or the part, or not to give any such directions. Okay, now over here we have been given what is fraud. Section 17 means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with an intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract. Now effect of contract, fraud renders the contract voidable at the option of the defrauded party. Essentials are basically RFBKOOO. So what is it? Representation or statement is false, okay.
So basically two things are there. Sentence is false when duty to speak it has, or when sentence is speech silence is equal to speech. It must be related to a fact. It must be made before the contract concludes. Party must be in knowledge of falsity or in the state of recklessness. Other party got induced. Other party realized and entered into the agreement. Other party suffered loss. So basically these are the cases. So we have fraud over here. So definition of fraud. Fraud means and includes any of the following acts committed by any party to a contract or with his connivance or by his agent with an intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract. The suggestion as a fact that which is not true by one who does not believe it to be true. The active concealment of the fact by one having knowledge or belief of the fact. यानी कि आप जानबूझ करके छुपाते हो जबकि आपको पता है कि वो गलत है. A promise made without an intention of performing it. आप प्रॉमिस कर दिए हो, आपका इंटेंशन नहीं है कि आप परफॉर्म करोगे कि नहीं करोगे. एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव. कोई भी ऐसा एक्ट जो आप डिसीव कर रहे हो, धोखा दे रहे हो. एनी सच एक्ट और omission एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट. ऐसा लॉ जो ऐसा जो चीज़ है जो लॉ आपको फ्रॉडलेंट बताता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्राइंग टू contract a person party to sell drugs. Okay, so that is what fraudulent. Okay, now following essential elements of fraud क्या है? RFB के OOO. Okay, whether silence is fraud or not, there must be representation or assertion and it must be false. ठीक है, representation statement false होना चाहिए दो चीज़ में whether silence is fraud or not. Okay, there is duty to speak. आपका ड्यूटी था स्पीक करने का. आपको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने ओके सो A sell by auction to B a horse which A knows to be unsound. आपने ऑक्शन में लगाया एक हॉर्स जो कि A को पता है कि वो अनसाउंड माइंड का, तो आपका ड्यूटी होता है आप उसके बारे में आपको बताना था, तो वो फ्रॉड है. ठीक है, विच व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच. साइलेंस जो है आपका स्पीच के बराबर है. B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. A says nothing. यानी कि अगर B ने बोला कि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि वो बोल नहीं रहा था कि साउंड माइंड का है नहीं, अगर आप अब कुछ नहीं बोलोगे तो हम समझेंगे कि वो साउंड माइंड का है. ओके, तो रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू फैक्ट. रिप्रेजेंटेशन फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए. A who is about to sell goods says that the goods cost him 50,000. This statement is a fact. But if he says the goods are worth 50,000, it is a statement of opinion. आप बोल रहे हो कि ये जो गुड्स है ये 50,000 का है, हमको 50,000 का पड़ा, लेकिन बाद में आप बोलते हो कि मुझे लगता है कि 50,000 लायक है, तो ये गलत है ना. ये रिलेटेड टू फैक्ट होना चाहिए. द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटेंशन टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन इट. यानी कि कंक्लूजन से पहले आना चाहिए आपका रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट शुड बी मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी और विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रू और रेकलेसली नॉट केयरिंग वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. आपका रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट जो है वो एकदम नॉलेज के साथ आना चाहिए, फॉल्सिटी और विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रू और रेकलेसनेस. अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड टू एक्ट upon the representation or assertion. A bought shares in a company on the faith of a prospectus which contained untrue statement that B was a director of the company. A had never heard of B and therefore the statement was immaterial from his point of view. A's claim for damages in the case of dismissed because the untrue statement had no induced A to buy the shares. कोई इसे इंड्यूस नहीं किया तो ओके, तो बेसिकली द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड. ये इंड्यूस होना चाहिए लेकिन ये इंड्यूस नहीं हुआ. द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड मस्ट हैव बीन डिसीव्ड. यानी कि वो रिलाई पूरी तरह से हो जाता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ए अग्रीड टू बी कि वो कार उसको सेल करेगा, तो वो जो है उस पर रिलाई कर रहा है ना कि वो कार बढ़िया है तभी उसको सेल कर रहा है. द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कंसिक्वेंटली सफर्ड अ लॉस. तो दूसरा पार्टी जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए वो सफ़र किया हुआ लॉस. Effect of fraud upon validity of a contract. When the consent to an agreement is caused by fraud, the contract is voidable at the option of the party defrauded and he has the following remedies. तो उसके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं. या तो वो रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम में रिसाइंड कर सकता है. ही कैन sue for damages. He can insist on the performance of the contract on the condition that he shall be put in the position in which he would have been had the representation made being true. अब इसी केस में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास बेसिकली 5 चीज़ें होते हैं अग्रीव्ड पार्टी किस तरह से कर सकता है. उसे हम लोग कहते हैं सूट फॉर डैमेजेस. सेक्शन 73 के केस में आई थिंक ये है. उसके बाद है रिसिजन, उसके बाद है सूट फॉर इंजेक्शन, उसके बाद है एस से सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंसिस्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और क्वांटम मेरिट. तो बेसिकली 5 चीज़ें जिसे हम लोग RISK SSK कहते हैं. ओके, यहाँ पे हमें 3 चीज़ मिल रहा है. फ्रॉड के केस में 3 चीज़ रिसाइंड कर सकता है, स्यू कर सकता है, इंसिस्ट फॉर परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इंसिस्ट कर सकता है. इसका एक्सेप्शन है
नॉट voidable है कब, इफ द पार्टी whose consent was caused by silence which amounting to fraud had means to discovering the truth. अगर आपके पास ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ, अगर आप दिमाग लगा करके आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ पता कर सकते थे सही, तो वहाँ पे आपका जो है फ्रॉड नहीं कहलाएगा. अ फ्रॉड विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट ऑफ द पार्टी टू द अग्रीमेंट, कंसेंट अग्री नहीं किया. मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 बोलता है. सेक्शन 18 क्या बोलता है? सेक्शन 18 बोलता है, ओके यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट और रेमेडीज दिया हुआ है. आप RSI कर सकते हो, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, स्यू फॉर डैमेजेस, इंसिस्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ओके, एक्सेप्शन इसका 2 केस मैंने समझा दिया फॉर डिफ्रॉडेड पार्टीज. उसके बाद मीन साइलेंस विल बी फ्रॉड व्हेन ड्यूटी टू स्पीक और साइलेंस इक्वल्स टू स्पीच विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. दिस रिप्रेजेंटेशन में हम लोग FBI करते हैं. FBI सेक्शन 18 में FBI ये एक नेमोनिक है. सो बेसिकली हमारे पास है मिस रिप्रेजेंटेशन बेसिकली कब होता है, तो फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बट अनइंटेंशनल, यानी कि आप अनइंटेंशनल कर रहे हो विदाउट इंटेंट टू डिसीव, इनोसेंट मिस्टेक, यानी FBI फॉल्स बट ऐसा आपको लग रहा है कि वो सही है. ओके, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ है लेकिन किसी इंटेंशन के साथ नहीं हुआ, इनोसेंट मिस्टेक है. सो बेसिकली अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़े सेक्शन 18 के अनुसार, तो वो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 देयर इज मिसरिप्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट which of false would constitute misrepresentation if the maker believes it to be true but which is not justified by the information he possesses. यानी कि F false है but खुद को ऐसा लगा कि सही है. When there is a breach of duty by a person without an intention to deceive which brings an advantage to him, यानी कि breach of duty तो हुआ है लेकिन किसी भी intention के साथ नहीं, without any intention. When a party causes, even though done innocently, the other party to the agreement make a mistake to a subject matter, यानी कि innocent mistake हुआ है. डिफरेंस है कोर्जन और अंडू इन्फ्लुएंस के बीच में, तो हमारा है NCREEP, नेचर ऑफ एक्शन कोर्जन, इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल फोर्स. अच्छा ये तो हमारा हो चुका है, ये वाला मैंने अभी बताया था. डिस्टिंक्शन है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का डॉक्टर BP की. ओके, सो व्हाट इज दिस? इंटेंशन है टू डिसीव द अदर पार्टी ऑफ हाइडिंग द ट्रूथ. आपका फ्रॉड में इंटेंशन है लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में नो सच इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, नॉलेज ऑफ ट्रूथ. द पर्सन मेकिंग द सजेशन बिलीव्स दैट द स्टेटमेंट इज अनट्रू. ओके, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव्स इट टू बी ट्रू ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू, यानी कि उसको लगता है ट्रू है लेकिन उसको नहीं पता है कि ट्रू है. ओके, सो rescission of the contract and claim for damages. The injured party can repudiate the contract and claim damages. The injured party is entitled to repudiate the contract or sue for restitution but cannot claim damages. यानी कि आपका जो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उसको नहीं पता था कि वो घोड़ा जो है वो मर चुका है जिसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो उसमें उसका क्या गलती है, वो तो सही सलामत देखा था इसलिए उसने उसका ऑक्शन किया था. मीन्स टू डिस्कवर ट्रूथ, अगर आपके पास ट्रूथ डिस्कवर करने का चीज़ है तो फ्रॉड में होता है ना. द पार्टी यूजिंग द फ्रॉडुलेंट एक्ट कैन नॉट सिक्योर और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट द इंजर्ड पार्टी हैड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ. Whereas misrepresentation में party can always plead that the injured party had the means to discover the truth. मिस्टेक के केस में हमारे पास आता है 2 which I said all earlier. मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ वैलिड होता है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ वॉइड होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेम है, मिस्टेक बायलैटरल होता है, यूनिलैटरल होता है, बायलैटरल एज टू सब्जेक्ट मैटर होता है, क्वालिटी एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी टाइटल प्राइस क्वांटिटी लीगल फिजिकल. और मिस्टेक एज टू, अच्छा मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर सिर्फ क्वांटिटी तक होता है, मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस लीगल होता है, फिजिकल होता है. यूनिलैटरल में आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और कैरेक्टर ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट. तो मिस्टेक क्या है? मिस्टेक में भी डिफाइंड एज, ये है सेक्शन हमारा 2021 और 22 आई थिंक सो इफ इट इज़ ओके 2021 एंड 22. ठीक है, तो मिस्टेक में भी डिफाइंड एज इनोसेंट और एरोनियस बिलीफ विच लीड्स द पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड द अदर्स. ओके, द मिस्टेक कैन बी ईदर मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ लॉ इज फर्दर क्लासिफाइड एज मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, अ पर्सन कैन नॉट बी अलाउड टू गेट any relief on the ground that it had done a particular act in ignorant of law, क्योंकि ये वैलिड होता है. ये अज्यूम किया जाता है कि इंडियन है तो आपको इंडियन लॉ पता होना चाहिए. मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, सच ए मिस्टेक इज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड द अग्रीमेंट इन केस ऑफ सच इज वॉइड. मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट 2 तरीके का, बायलैटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल मिस्टेक. बायलैटरल व्हेन बोथ द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एन अग्रीमेंट, देयर इज अ बायलैटरल मिस्टेक. इन सच अ केस द अग्रीमेंट इज वॉइड. सेक्शन 20 केसेस है बायलैटरल मिस्टेक में QEITPQ. Mistake as to quantity to of the subject matter, existence of the subject matter, identity of the subject matter, title of the subject matter, price of the subject matter, quantity of the subject matter. इन सभी चीज़ों के वजह से अगर मिस्टेक हुआ है तो वो मिस्टेक है. यूनिलैटरल मिस्टेक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22, सेक्शन 22 में हमारा यूनिलैटरल मिस्टेक देता है, बायलैटरल मिस्टेक हमारा सेक्शन 20 में दिया हुआ है. अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मेयरली बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय वन पार्टी टू इट बीइंग अंडर अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट. लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, जब हम लोग लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन बोलते हैं तो हम लोग FFIIPP बोलते हैं. सेक्शन 23 कहता है कि बोलता है कि each of the following cases the consideration or object of an agreement is said to be unlawful when it defeats the provision of the law, when it is fraudulent, when it is
when it is forbidden by law, when it is fraudulent, when it involves injury to the person or property of the other, when it is what, when it is immoral, when consideration is immoral, okay, when it is opposed to public policy. अब इसके केस में we will be taking the reference of the notes. So basically legality of object in consideration section 23 में बोलता है, 23 में बोलता है, यहाँ पर 23 में ये है हमारा 23 सेक्शन, ओके। तो ये जो है वॉइड होगा, कब वॉइड होगा, डबल FFIIPB सेक्शन 23, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, okay, when consideration or object defeats the provision of law, when it is fraudulent, when consideration involves injury to the person or property of another, when consideration is immoral, when consideration is opposed to public policy. अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, जैसे कि चाइल्ड मैरिज या फिर डाउरी, तो वो एकदम फॉरबिडन बाय लॉ है, ओके। जब ऑब्जेक्ट और उसका कंसिडरेशन ही डिफीट कर रहा है प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी कि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि फ्रीडम टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस एंड नोबडी कैन टेक द प्रिविलेज अवे, ठीक है। तो वो डिफीट अगर कर रहा है, ये वाला जो प्रोविजन है इसको डिफीट कर रहा है, तो वो अनलॉफुल है। अगर वो फ्रॉडुलेंट है, कॉन्ट्रैक्ट टू शेयर गेन्स बाय सेलिंग फेक पेंटिंग ऑफ पिकासो, ओके, पिकासो का फेक पेंटिंग जो आप सेल करोगे उससे जो गेन आपको आएगा वो आप डिवाइड करोगे, तो वो फ्रॉडुलेंट है। व्हेन इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द अदर, यानी कि आप जो है मैनुअल लेबर कर रहे हो, जैसे कि कॉपीराइट लग सकता है। व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल, कंसिडरेशन इमोरल है, जैसे कि आप डिवोर्स करो और आप लीव कर दो और 5 करोड़ देंगे, उसके बाद ये होता है एग्जाम्पल।